Very good morning, dear students and all the viewers whosoever are looking or listening to me. Before I start the chapter, let me introduce myself. I am Manoj sir and I have been teaching English more than 20 years longer. Basically, this video I have made for my school children, but it is equally beneficial for all of you. So let's start now. The first thing is that why don't you speak English? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो, कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। जब तक आप किसी भी समस्या का कारण नहीं जानेंगे, रीज़न नहीं जानेंगे, तब तक आप उसका समाधान भी नहीं खोज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रीज़न क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द रीज़न, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू रिपीट आफ्टर मी, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। So most of you will answer me that sir, because of hesitation, I have hesitation, that is why I can't speak. Some of you may say I have lack of appropriate words, मेरे पास उचित शब्दों की कमी है। While speaking English I don't have the proper words. So let me tell you, किस बात का हेजिटेशन है भाई आपको हेजिटेशन है, हिचकिचाहट होती है, किस बात की होती है। आपको हिचकिचाहट इस बात की नहीं होती है कि आपके पास वर्ड नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव द वर्ड्स, बट द प्रॉब्लम इज वेयर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उस हेजिटेशन में है जो आप सोचते हैं कि व्हाट द हेल अदर्स थिंक अबाउट यू। सपोज यू आर सिटिंग एंड सम गाइज आर जस्ट सिटिंग बिसाइड यू. You always think what he thinks about me, what she thinks about me. These all kind of things always are in your mind. That is why I don't speak. So why do you bother about those guys? You have to nothing to do with anything. Just remove out hesitation. Can anybody come to feed you if you are hungry? One day or 2 days maybe. Anybody can help you. कोई आपका help कर सकता है। 1 या 2 दिन आपको खाना खिला देगा, लेकिन क्या कोई रोज आपको खाना खिलाएगा करके? नहीं ना। अगर रोज आपको खाना नहीं खिलाएगा भाई, तो आप उनके बारे में इतना चिंता क्यों करते हो? जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। नाउ, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग समथिंग। आपके पास वर्ड नहीं होते हैं, ये हो सकता है। It may be that you have not the proper words while speaking anything. You will do it later on. Now, some of you may say, I have the grammar problem. I make the grammatical mistake. Yes, you may do it. That is not the problem. In my video, okay, I will tell you everything about the grammar, but believe me, in the very beginning you need not anything. You have to only speak. You have to focus on only speaking. Just forget about the grammar, everything. Fourth thing, some of you may say that English is my second language. Yes, English is my second language sir. ये मेरी second language है. It's not my mother tongue. Maybe some of you from Hindi areas, your mother tongue is Hindi, maybe it is Tamil, Bangla or whatsoever it is. जो कुछ भी हो, कुछ भी आपकी मदर टंग हो सकती है, ठीक है। तो आपके प्रश्नों का जवाब यहीं पर है, यहीं पर छुपा है। दिस इज हिडन इन योर क्वेश्चंस। अच्छा, आपका जो मदर टंग है, आप ये बताओ वो क्यों बोलते हो आप? वाई डू यू स्पीक योर मदर टंग? Definitely your answer will be because right from the childhood days I have been speaking
My family members speak Hindi, that is why I speak Hindi. My family members speak Bangla, that is why I speak Bangla, or Kannada, or whatsoever. Just think about it, because the answer is hidden here. एक बच्चा हिंदी कैसे बोलता है या अपनी मदर टंग को कैसे बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि वो बचपन से ही उस भाषा को लगातार सुनता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय लिसनिंग वन कैन स्पीक इंग्लिश। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। केवल सुनने से ही आपको कोई भाषा नहीं आ जाएगी। हाँ, आएगी, बट अप टू नॉट दैट एक्सटेंट दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। तो क्या ऐसा होता है बच्चे के साथ में कि वो बच्चा पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने लगता है? देखिए, जस्ट इमेजिन अबाउट अ चाइल्ड, मे बी 2 years or 2.5 years. When a mother gives the child milk, जब माँ बच्चे को दूध देती है, she says, ये लो दूध पी लो, या किसी और भाषा में कुछ और बोलती है। इंग्लिश में क्या बोलती है? टेक द मिल्क, ड्रिंक द मिल्क। तो क्या चीज़ यहाँ पर होती है? ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं बच्चों। एक ये होता है कि माँ मुँह से बोलती है कि ये लो दूध पी लो, और दूध उसके मुंह में लगा देती है। तो यहाँ साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्पीकिंग, दूसरी चीज़ होती है एक्शन। तो जब एक्शन के साथ में कोई चीज़ जब बोली जाती है तो क्या होता है? वो चीज़ दैट बिकम द पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे अचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाती है, वो हमारी हैबिट में शुमार हो जाती है। एंड दैट इज़ व्हाई चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग हिंदी। सो नाउ द क्वेश्चन ऑलवेज दैट हैव इन योर माइंड कि भाई हम अंग्रेजी बोल कैसे सकते हैं फिर? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? या आप अपने आप से पूछ सकते हैं, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश? क्या पूछेंगे आप? बोलिए ज़रा, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश? यस, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हो। द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। आंसर बहुत ही सिंपल है, बी अ चाइल्ड। बच्चे बन जाइए भाई, बच्चे बन जाइए और आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। आप जस्ट कल्पना करो, आप सपोज करो राइट हैंड से लिखते हो, तो राइट हैंड से लिखते हो तो एक बार आप लेफ्ट हैंड से लिखना, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड से लिखना, और लिखकर देखना कि क्या होता है। जब भी आप लिखोगे, अगर राइट हैंड से आप लिखते हैं और लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चा स्टार्टिंग कैसे करता है। यू विल रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज, हाउ डिड यू स्टार्ट। एक बच्चा हिंदी बोलता है, तमिल बोलता है, बांग्ला बोलता है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, उसके अवचेतन मस्तिष्क में होती हैं, फीलिंग में आ जाती हैं। तो यू हैव टू गेट इट इन योर फीलिंग एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। वेरी सिंपल, बी अ चाइल्ड, मतलब बच्चे बन जाइए। बच्चे बन जाएंगे आप तो आप आसानी से इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, सो अगर बच्चे आप बन जाएंगे तो बन जाइए, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको करिए। जस्ट बिलीव इन मी, बिलीव इन यू, यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस, एंड यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन यू एंड ऑन मी ऑल्सो। आपको एक सही मार्गदर्शक मिला है। बिलीव मी, आई हैव बीन इन दिस जॉब मोर देन 20 years एंड आई हैव ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, एंड टुडे I am just teaching you, I am just making this one is my first video. Okay, so you have to repeat after me. Repeat करिए मेरे बाद बच्चे बन करके. If you have any problem, suppose you are sitting somewhere where somebody is looking at you, have shyness, you have some kind of hesitation, just go alone somewhere where you are alone, just sit. Okay, so repeat after me.
फर्स्ट आई कैन डू, आई कैन डू, बोलिए आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। सेकेंड बोलिए आई विल डू, आई विल डू, नहीं बोल रहे हैं आप ना, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी इंग्लिश भाई, कभी नहीं आएगी, बोलिए आई विल डू, मैं करूंगा। चलिए फिर से बोलिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोलिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोलिए आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, बोलिए मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, बोलिए, बोल दिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यू विल डू इट, आप बोलोगे, पक्का बोलोगे, बिलीव मी, आप बोलो इसको। थर्ड सेंटेंस बोलिए आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, बोलिए आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, फिर से बोलिए वंस अगेन स्पीक, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ। ओके, फोर्थ सेंटेंस बोलिए आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, देखिए मैं गैप दे रहा हूं, आप बोलिए आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। ओके, वेल डन। एंड फिफ्थ सेंटेंस आप बोलेंगे गॉड इज ऑलवेज विद मी, तोड़ के बोलिए गॉड इज ऑलवेज with me, once again repeat after me, God is always with me। देखिए इन सेंटेंसेस को आपको फील भी करना है, एक बार फिर से बोलिए। और लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, that English speaking classes is not nothing like that one way communication lecture classes where I deliver the classes and you keep viewing. It is not possible to speak English then, you can't speak English any time। अगर आप चाहते हो, सचमुच चाहते हो, रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको मेरे बाद रिपीट करना होगा। ये एकदम एक्सपेरिमेंटल क्लासेज होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेज होती हैं। बिलीव मी, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है आज, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है, और बिना स्टूडेंट्स के कोई चीज़ पढ़ाना है, स्पेशली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन क्लासेज, इट इज नॉट पॉसिबल। कम्युनिकेशन क्लासेस का मतलब होता है कि हम बोलें फिर आप बोलें, ठीक है, यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है, यू नीड टू स्पीक आफ्टर मी, यू नीड टू रिपीट आफ्टर मी। ओके, सो एक बार फिर से बोलेंगे आप लोग, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, फील करिए, आई विल डू, मैं करूँगा, मैं करूँगा, सोचिए मन से, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, बोलिए आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ। देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, एक होते हैं लीडर, एक होते हैं फॉलोअर। लीडर कौन होता है? वन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दैट ही डज, वन हु कैन टेक डिसीजंस इन हिज लाइफ। आप अपने जीवन के डिसीजन मेकर बनो, ठीक है, आपको अपने लाइफ के निर्णय खुद लेना है। ऑलवेज थिंक आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो आप लीडर हो अपने लाइफ के। तो एक बार बोलिए आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का नेतृत्व करता हूँ। नेक्स्ट बोलिए आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, बोल रहे हैं, पक्का बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो आएगी इंग्लिश, आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। बोला आपने, इकट्ठा बोलिए, एक साथ बोलिए, आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, और फील करिए मैं अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लीडर हूँ, बिकॉज आई एम लीडर। और नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए गॉड इज ऑलवेज विद मी,
गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। फील करिए, बोलिए, भगवान मेरे साथ हमेशा है। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी।